Hello to everyone, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about chapter number 5, admission of a partner. Today in this video we will discuss about example number 14. Now example number 14. Ruthvi and Princey are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. The balance sheet of their firm as on 31st March 2017 was as under. Here बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड्स पे है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, करंट अकाउंट्स रुतवी एंड प्रिंसी का है, कैपिटल अकाउंट्स भी रुतवी और प्रिंसी का है एंड असेट साइड्स पे है बैंक, डेप्टर्स, स्टॉक, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट. Then they admitted Manan as a partner on 1st April 2017 on the following terms. यहाँ पे हम कौन कौन से अकाउंट क्रिएट करेंगे तो पहले हमको डिसाइड कर लेते हैं. यहाँ पे पार्टनर्स के करंट और कैपिटल अकाउंट दिए हैं. ओके, तो हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और जो कैपिटल अकाउंट्स है वो हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे न्यू बैलेंस शीट्स में. ओके, और यहाँ पे हम और रेवल्यूशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट्स भी प्रिपेयर करेंगे. ओके, let's start it. Answer. There is first find out sacrifice ratio. Here old profit loss sharing ratio is given 5:3, but new or sacrifice ratio is not given. It means कि new profit loss sharing ratio or sacrifice ratio is not given. Therefore, the old ratio is a sacrifice ratio 2 and new ratio also. Okay, that's why sacrifice ratio is equal old profit loss sharing ratio. So sacrifice ratio is 5:3. Let's see old balance sheet. There is first is workman profit sharing fund, then creditors. These two is transferred. These two accounts is transferred to directly in new balance sheet. In new balance sheet, there is write down creditors 1,20,000, write down in inner column. Then workman profit sharing fund 30,000, write down its amount in outer column. Then next entry here given workman compensation reserve, but I will skip this because of there is a one adjustment related to this. So we take the current account Ruthvi and Prinsika and it is transferred to in partners current account. In partners current account there is write down at the credit side by balance BF because of this is the balance of this 1,50,000 and 1,95,000. The next entry given their capital account Ruthvi or Prinsika hai, it is transferred to in our new balance sheet. In our new balance sheets liability sides there is write down capital account Ruthvi 1,20,000, Princey 90,000 rupees. Now asset sides there is write down first bank. It is our bank balance and it is transferred to in our bank account. In bank accounts debit sides there is write down to balance BF 60,000 rupees. Now in old balance sheets there is write down debtors, stock, building and investments. This account we transfer in our new balance sheet. In our new balance sheets there is write down first asset sides building 4,50,000 its amount, write down in outer column because of there is a no any adjustments related to this building. Okay, then नेक्स्ट लाइन में हम इन्वेस्टमेंट राइट करेंगे 1,05,000 बट इट्स अमाउंट राइट डाउन इन इनर कॉलम एंड वन लाइन skip. Then you will write down that debtors 90,000 rupees, write down in outer amount column because of there is no any adjustments related to debtors. Then after next line you write down their stock and stock amount write down in inner column 60,000 rupees because of it is related to adjustment. Now let's see adjustment. There is first adjustment is Manan will bring his personal furniture of rupees 75,000 as a capital. It means यहाँ पे मनन एज अ कैपिटल में
फर्नीचर लाया है। ओके, आज हमने अब तक के जितने सम सीखे उसमें थे क्या, फर्नीचर नहीं पर कैश या बैंक लाता था ना, कैश ला के आता था मन कोई भी न्यू पार्टनर हो। पर यहाँ पे फर्नीचर लेके आया, तो जब कैश लेके आता तो कैश अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट इफेक्ट करते हैं ना, पर यहाँ पे फर्नीचर लेके आया है तो दोनों किस्से में डिफरेंस है कि एक में कैश और एक में न्यू बैलेंस शीट इफेक्ट करता है। पर यहाँ पे ओनली न्यू बैलेंस शीट इफेक्ट करेगा, पर दोनों साइड पे लायबिलिटीज और असेट्स दोनों साइड्स पे इफेक्ट करेगा। एक तरफ यानी कि लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में राइट होगा, और जो असेट साइड्स में उसमें असेट्स में फर्नीचर राइट होगा। ओके, सो इन अवर न्यू बैलेंस शीट्स में पहले कैपिटल राइट करेंगे। सो लायबिलिटी साइड्स पे जो रुतवी और प्रिंसी की कैपिटल लिखी थी वहाँ पे हम मनन की भी कैपिटल लिख लेंगे 75,000 रुपीज। ओके, और इट्स टोटल राइट डाउन इन आउटर कॉलम 3,45,000 rupees. Okay, then furniture it is our asset, so it is recorded asset side. So there is write down furniture 75,000 rupees. Next adjustment is number 2. Out of creditors rupees 60,000 are payable to Manan, which is to be transferred to his capital account. यानी कि मनन फर्नीचर लाया और अब क्या करता है, क्रेडिटर्स को पे कर देता है। जो 60,000 के क्रेडिटर्स थे उनको वो पे कर देता है, और ये जो अमाउंट है वो उसकी कैपिटल की अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि एज अ कैपिटल वो क्रेडिटर्स को पे कर देता है। ओके, दिस एडजस्टमेंट्स आल्सो राइट डाउन इट्स बोथ एंट्री in new balance sheet. First entry is given in capital accounts of Manan. There is a plus 60,000 rupees, so its addition 1,35,000 rupees, and तीनों का मिला के 1,20,000, 90,000 and 1,35,000. Its total write down in outer columns 3,45,000 rupees. Okay, then after here creditors pay by Manan. Okay, so creditors में उतने से कम हो गए ना, so creditors 1,20,000 rupees के थे minus paid by Manan 60,000 rupees. So अब it's different 60,000 rupees write down in inner column. Okay, because of here one adjustment also comes on these creditors. Now next adjustment number 3, 4 and 5 we will together with. Okay, Manan will be given 1/5 shares in future. Then Manan will bring 45,000 as a goodwill in cash. Goodwill of firm is valued at 3 lakhs. It means मनन के हिस्से की हमें गुडविल पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि मनन को कितनी गुडविल लानी थी, और वो कितनी, वो 45,000 रुपीज़ तो लाया है, पर कितनी लानी थी वो हम इस इंफॉर्मेशन से काउंट कर सकते हैं। सो लेट्स मेकिंग अ वर्किंग नोट। सो इन वर्किंग नोट में हम राइट करेंगे कि मनन गुडविल ऑफ मनन, यानी कि गुडविल ऑफ मनन को गुडविल कितनी थी फॉर्म की 3 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई बाय मनन का हिस्सा 1/5 शेयर, सो 3 lakhs मल्टीप्लाई बाय 1/5 शेयर, सो 60,000 रुपीज गुडविल है, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपीज है। बट उसमें से मनन 45,000 रुपीज ही कैश लाया है, तो बाकी की जो 15,000 बची वो हम मनन के कैपिटल में से ले लेंगे। ओके, यानी कि यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की 2 एंट्रीज होगी। एक एंट्री होगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री होगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। देन थर्ड एंट्री जो 15,000 रुपीज के लिए आएगी वो एंट्री होगी कि मनन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनदर पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, नाउ इन बैंक अकाउंट्स देयर इज राइट डाउन इट्स फर्स्ट एंट्री फॉर अ प्रीमियम फॉर गुडविल, जो 45,000 रुपीज कैश लाया है वो, बिकॉज ऑफ कैश कम्स इन अवर बिजनेस, सो कैश बैलेंस इज इंक्रीज, and we know that cash balance always debit balance, so write down at
डेबिट साइड्स ऑफ बैंक बैलेंस। ओके, बैंक अकाउंट, यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है तो बैंक अकाउंट में राइट करेंगे देयर इज राइट डाउन टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 45,000 रुपीज, जो कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है वह। देन पार्टनर करंट अकाउंट में कोई सी एंट्री देते हैं, तो पार्टनर करंट अकाउंट्स में हम पहले जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है ना मनन 45,000, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके हमने यहाँ पे राइट किया है। उसकी काउंटिंग मैंने ब्लू कलर में इंडिकेट की है कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया है कैश में 45,000 रुपीज़, वो हम डिवाइड कर देते हैं रुतवी और प्रिंसी में। तो रुतवी की आती है 45,000 मल्टीप्लाई बाय 5/8, so its share is 28,125. Then Prince's share is 45,000 multiplied by 3/8 is equal to Prince's share is 16,875 and it is recorded in partners current accounts credit side. That is write down by premium for goodwill account. रुतवी की अमाउंट कॉलम में राइट करेंगे 28,125 और प्रिंसी की अमाउंट कॉलम में राइट करेंगे 16,875. Now the next entry again given in partner current accounts, those parts are not brought in cash. ओके, 15,000 रुपीज़ की जो गुडविल थी बाकी उसकी वो कैश में नहीं लाया था, उसकी ये एंट्री होगी अब। तो ये उसके कैपिटल अकाउंट्स में क्या होगा, यस रिड्यूस होगा, और जो रुतवी और प्रिंसी का अकाउंट है उतने से इंक्रीज होगा। ओके, सो रुतवी की हम फाइंड आउट करते हैं तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5/8, सो रुतवी के हिस्से का शेयर है 9,375 और प्रिंसी का 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 is equal 5,625 rupees. It is Prince's share. Okay, and it is recorded in our partner's current account. There is write down at credit sides by Manan's current account 9,375 and 5,625 rupees. Then next adjustment number 6, credit purchase of rupees 50,000 which was not recorded in creditors account and purchase account but it is included in closing stock. It means कोई क्रेडिटर परचेज किया है वो हमने क्रेडिटर की अकाउंट्स बनाते उसमें भी नहीं राइट किया और परचेज भी नहीं राइट किया, तो क्रेडिटर्स में ऐड हो गए और ये परचेज हुआ है इसलिए वो हम रेवोल्यूशन अकाउंट्स की डेबिट साइड्स पे रिकॉर्ड करेंगे। सो फर्स्ट इफेक्ट गिवन इन अवर बैलेंस शीट्स, देयर इज राइट डाउन क्रेडिटर्स की जो हाफ अमाउंट रही थी ना 60,000 उसमें हम प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेज 15,000। सो अब हमारे क्रेडिटर्स हुए 75,000 रुपीज और नेक्स्ट एंट्री गिवन इन अवर रेवोल्यूशन अकाउंट। In revaluation accounts debit sides there is write down to purchase account 15,000 rupees. The next transaction is number 7, market value of stock of rupees 45,000 is rupees 36,000. It means यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई है, 45,000 रुपीज़ थी और 36,000 रुपीज़ हो गई, सो 9,000 का हमें लॉस हुआ। सो we know that loss always be recorded in revaluation account debit side. So here at the debit side write down there in black portion में to stock account 9,000 rupees. Now in balance sheets यानी कि न्यू बैलेंस शीट्स में हम राइट करेंगे स्टॉक है हमारा 60,000 माइनस डिक्रीज कितना हुआ 9,000। तो 60,000 में से 9,000 कट करते हैं तो डिफरेंस आता है 51,000. इट इज रिकॉर्डेड इन outer amount column. Now next adjustment number 8, liability of workman compensation is rupees 28,000. It means कि in future हमें 28,000 की liabilities होगी, ओके यानी फ्यूचर में हमें पे करना होगा। तो अभी हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 60,000, उसमें से हमारी ये liabilities 28,000 कट करें तो डिफरेंस आता है 32,000 एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो. सो हियर रुतवीज शेयर इज 32,000 मल्टीप्लाई बाय 5/8,
So 20,000 rupees it is Rutvi's shares. Okay, then Prince's share is 32,000 rupees multiplied by 3 upon 8, so 12,000 rupees, and it is also Prince's share. Okay, and it is recorded in our partner's current account. In partner's current account, there is credit sides we write down there by workman compensation reserve account. और रतवी की कॉलम में हम राइट करेंगे 20,000 और प्रिंसी की कॉलम में हम राइट करेंगे 12,000 रुपीज. And in new balance sheets there is write down at the liability side liability of workman compensation 28,000 rupees. Why we write here? Because of it is our liabilities and it is pay in future. Then next adjustments is accrue interest on investments rupees 24,000 is not recorded. It means it is our income, and income if not recorded that time we have to profit, so it's a entry given in revelations accounts at credit side. So that's why here at the credit sides I write there by outstanding interest on investments account 24,000 rupees, and second effect given in our new balance sheet. In our new balance sheets there is write down assets sides outstanding interest on investment 24,000 rupees. Now here our all एडजस्टमेंट या कंडीशन कहो या टर्म्स कहो वो फिनिश हो गई. तो अब हम वन बाय वन अकाउंट्स क्लोज करेंगे. पहले हम रेवोल्यूशन अकाउंट क्लोज करेंगे. सो रेवोल्यूशन अकाउंट्स की डेबिट साइड्स और क्रेडिट साइड्स दोनों सेम है. तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके, सो नथिंग यानी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. नाउ पार्टनर्स करंट अकाउंट अब क्लोज करेंगे. सो पहले हम प्रिंसी की कॉलम क्लोज करेंगे. यह प्रिंसी की क्रेडिट कॉलम ज़्यादा है, सो उसकी जो क्रेडिट कॉलम की एडिशन है 2,29,500. इट इज राइट डाउन एट बोथ साइड्स डेबिट साइड्स एंड क्रेडिट साइड्स. देन डिफरेंस ऑल्सो सेम 2,29,500 रुपीज. ओके, देन रुतवी की कॉलम की हम एडिशन करेंगे. तो रुतवी की कॉलम में क्रेडिट साइड की एडिशन आती है 2,07,500 रुपीज. इट इज राइट डाउन बोथ साइड्स एंड डिफरेंस ऑल्सो सेम 2,07,500 रुपीज. एंड इन फ्रंट ऑफ दिस वी राइट डाउन देयर बाय बैलेंस CF. Okay, and this balance we transfer in our new balance sheet. So in balance sheets there is write down liability sides. लास्ट में मैंने राइट किया जो ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है कि करंट अकाउंट रुतवी का है 2,07,500, प्रिंसी का है 2,29,500 एंड इट्स टोटल 4,37,000 राइट डाउन इन आउटर अमाउंट कॉलम. देन बैंक अकाउंट अब क्लोज करेंगे. सो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड्स पे दोनों एंट्री थे, सो क्रेडिट साइड्स पे वही आ जाएगा, यानी कि डेबिट साइड्स का एडिशन है 1,05,000 राइट डाउन बोथ साइड्स एंड सेम इट इज डिफरेंस ऑल्सो. एंड देयर इज राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ दिस अमाउंट बाय बैलेंस CF 1,05,000 rupees and it is transferred to in our new balance sheet. And the new balance sheet has to be write down bank 1,05,000 rupees. ओके, बैंक बैलेंस हमने राइट कर लिया. अब हम ये न्यू बैलेंस भी क्लोज कर देंगे. सो इट्स बोथ साइड्स अमाउंट यानी कि लायबिलिटीज अमाउंट एंड असेट्स की अमाउंट दोनों की सेम एडिशन होती है 9,15,000 रुपीज. सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 फिनिश हुआ. थैंक यू and have a nice day.